So, good morning, children. Today we are going to discuss about the different life processes of Monera kingdom. That means we are going to discuss about the nutrition in bacteria, then respiration in bacteria, reproduction in bacteria, and we will discuss about the different classes or classification of Monera kingdom. So, let us start with one by one. Let's discuss about nutrition in bacteria. Nutrition means what they eat, how they eat. कैसे वो खाते हैं और क्या खाते हैं, ठीक है. सो मोनेरा किंगडम में जितने भी फर्स्ट तो यू नो दैट मोनेरा किंगडम इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. सो वन थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड दैट these monerans need water for survival, but because they are very small, even a drop of water is sufficient for them. एक छोटे से पानी का एक बूंद में भी बहुत सारे बैक्टीरिया रह सकते हैं और वहीं से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. नाउ जितने भी तरह का आप न्यूट्रिशन सोच सकते हो, monerans have all the different type of nutrition possible. So they may be autotrophic also, they may be heterotrophic also. Autotrophic means they will produce their own food. अपना खाना खुद बनाएंगे. खाना means organic food. So they prepare their own organic food by taking inorganic ingredients from the environment. So that are known as autotrophic. See, autotrophic again, they can be categorized into two types. One is photosynthetic and another is chemosynthetic. So they can be known as photoautotrophs. Photo, jo sunlight, photo means sunlight. So they take energy from sunlight and they synthesize their organic food. देखना वर्ड ध्यान देना. Here I am always talking about organic food. Food is always organic substance. Okay. And they may be chemosynthetic. Chemo word comes from chemical reaction. So they do chemical reactions and they get energy from that chemical reaction to synthesize their food. So ये एक नया तरीके का आप यहाँ पढ़ रहे हो, chemosynthesis. We'll study in detail. So this is one type of nutrition. Another type of nutrition, they may be parasitic. बहुत सारे आपने बैक्टीरिया पढ़े हैं जो कि पैरासाइट होते हैं, जो डिजीजेस कॉज करते हैं. They live on the body of other organisms or inside the body of other organisms. So they are parasitic. Someone's audio is on. Kindly switch it off because keep it on mute. Okay. The second one is saprophytic. Saprophytic means they are decomposers. They live on the dead and decaying materials. Or they may be symbiont. Symbiont means they are living in association with other organisms. Both are getting benefited by each other. That is symbiont. Symbiont मतलब होता है दोनों दो organisms एक साथ रहेंगे, दोनों एक दूसरे की help करेंगे. So let's discuss one by one. First group of bacteria, first type of nutrition in bacteria is photoautotroph. Photo मतलब photo word जहां आएगा इसका मतलब होता है sunlight. So they are getting energy from sunlight. तो sunlight की एनर्जी लेकर के और क्या करेंगे, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे. फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला यही होता है, आपने पढ़ा था ना. इन फोटोसिंथेसिस सनलाइट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द केमिकल एनर्जी. सो CO2 is the ingredient. CO2 लेंगे and they will produce a carbohydrate, that is glucose, from this carbon dioxide. So formula remains the same as you have read in class 10th. Carbon dioxide plus water in the presence of chlorophyll. Here it is a bacterial chlorophyll. Okay, and bacterial chlorophyll. These are the two types of chlorophyll, bacteriochlorophyll and bacteriovidin. So in the presence of this pigment, they take the energy of sunlight and produce their own carbohydrate, that is glucose, and oxygen is released. So ये एकदम exactly वही है जैसा कि आपने photosynthesis में class 10th में पढ़ा था. Carbon dioxide plus water forms glucose and oxygen is released. Okay. And example of bacteria, example of photoautotrophic bacteria is cyanobacteria. These cyanobacteria are also known as blue green algae. ये याद रखिएगा, cyanobacteria, cyan color, they are of cyan color. Cyan is light blue color, dark blue color. So they are bluish bacteria. Okay.
Another group of bacteria are known as chemoautotroph. Autotroph का मतलब तो जानते हैं आप. Autotroph means auto, self, troph, nutrition. अपना nutrition के लिए they are dependent on themselves only. They are not getting food from outside any other organisms. So autotrophic है और energy कहाँ से मिल रही है? Sunlight नहीं है यहाँ पर chemical reaction की energy है. क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. याद है कुछ? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक जहां, हाँ बोलो. एक्सोथर्मिक में एनर्जी बाहर रिलीज होती है. ठीक है, तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर रिलीज होगी, जैसे कि सल्फर कंपाउंड है, सल्फर एलिमेंट है, उसको जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है. S+O2 फॉर्म्स SO2. तो जब ये SO2 बन रहा है तो इसमें एनर्जी बाहर रिलीज होगी. सो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और जो एनर्जी बाहर रिलीज होती है उसी एनर्जी को ये लेकर के, इसी एनर्जी को लेकर के ये अपना फूड बनाते हैं, chemoautotrophs. Okay, so though these bacteria do not require sunlight and pigment for their nutrition. यहाँ पर पिगमेंट की भी जरूरत नहीं है. क्यों? पिगमेंट का काम था सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करना. यहाँ पर सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप नहीं करना है, इसलिए पिगमेंट भी नहीं होता है यहाँ पर. जो यहाँ पिगमेंट्स आपने पढ़े थे ना, ग्रीन कलर के पिगमेंट, बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोवोइडिन, वो कीमोट्रॉफ्स में नहीं होते हैं. These bacteria oxidize certain inorganic substances with the help of atmospheric oxygen. तो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया, उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज किया. रिएक्शन कौन सा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और जब वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी बाहर निकल रही है. उस एनर्जी को ले रहे हैं और फिर से रिएक्शन फिर वही होगा जो फोटोसिंथेसिस का था. यानी उस एनर्जी को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, वाटर को लेंगे और बनाएंगे ग्लूकोज. यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं निकल सकती है, निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है. इट्स नॉट कंपल्सरी कि ऑक्सीजन रिलीज होगी. ठीक है, बट ग्लूकोज जरूर प्रोड्यूस होगा एज अ फूड. And the example of chemoautotrophs are sulfur bacteria, that is sulfomonas, hydrogen bacteria, hydromonas, pheromonas, methanomonas, nitrosomonas. ये सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉफिक हैं लेकिन केमिकल एनर्जी से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं. तो ये 2 तरह के हो गए ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. अब नेक्स्ट कमिंग टू द हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. Heterotrophic means various. Hetero means various kind of food habit. They have different type of food habits. They cannot produce their food. They are dependent on others to get their food. Now they can be categorized as 3 types. Saprophytic, saprophytes. Saprophytes मतलब जो decomposition करेंगे. Saprophytes bacteria obtain their food from dead and organic decaying material. जब कोई चीज मर जाती है, डेड हो जाती है, डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस है, तो उससे ये अपना फूड मार्क करेंगे, अपना एब्जॉर्ब करेंगे. उसको वो डाइजेस्ट करेंगे बाहर में और डाइजेस्ट करके फिर उस फूड को ले लेंगे. देखो जितने भी ये ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे लीव्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स, एनिमल फीसेस, लेदर, ह्यूमस, ये सब जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये इनके पास बहुत एनर्जी होती है तो ऑर्गेनिक. ये क्या करते हैं? उस ऑर्गेनिक को डाइजेस्ट करेंगे. जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो क्या खाते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही तो खाते हैं ना. कार्बोहाइड्रेट खा लिया, प्रोटीन खा लिया, फैट खा लिया, तो उसको हम क्या करते हैं? फिर डाइजेस्ट करते हैं. तो ये क्या करेंगे? ये सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया ये भी उन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डाइजेस्ट करेंगे, लेकिन बॉडी के अंदर नहीं डाइजेस्ट करेंगे. ये दे सीक्रेट एंजाइम्स टू डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब इट. ये एंजाइम्स को बॉडी के सेल के बाहर, जैसे कि मान लो ये यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, ये है बैक्टीरिया. सो ये अपनी बॉडी के बाहर एंजाइम निकालेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा. जब ये एकदम डाइजेस्ट होके छोटे 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 पोर्शन में आ गया तब ये इसको वापस से एब्सॉर्ब कर देगा. ओके, सो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, इनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं. एंड द एग्जांपल गिवन हियर इज बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस ramosus, Acetobacter, etc. Okay, so you have to learn the examples of saprophytic bacteria also. Another group is parasitic bacteria. Parasite.
पैरासाइट वर्ड जहां आएगा इसके साथ में आएगा होस्ट। पैरासाइट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहेंगे और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहेंगे होस्ट। उसकी बॉडी के सरफेस पर रह सकते हैं, बॉडी के अंदर रह सकते हैं। ओके, so parasitic bacteria obtain their nutrition from the tissues of the host on which they grow, and most of the time these parasitic bacteria they cause disease, बीमारी पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे नाम हमने लिखे हुए हैं, Pseudomonas citrei, Bacillus typhosus, Bacillus anthracis, Bacillus tetani, Bacillus diphtheria, Bacillus tuberculosis, Bacillus pneumoniae, Vibrio cholerae, etc. These all are the pathogenic bacteria. They all cause disease. They get their food from other living organisms on which they survive, and in turn they damage the host. That host को कुछ ना कुछ problem देते हैं, कुछ ना कुछ बीमारी पैदा करते हैं। Okay, and the third type of heterotrophic bacteria is symbiotic bacteria. Symbiotic, किसी के साथ मिलके रह रहा है और उसको भी मदद भी कर रहा है और उससे मदद ले भी रहा है। So symbiotic bacteria live in a close association with other organisms as symbiont. They are beneficial to the organism. So मान लो एक organism है A और एक organism है B. अगर organism A B को कुछ दे रहा है और organism B भी A को कुछ दे रहा है, तो इस तरह के association को कहते हैं symbiotic association. For example, like मैं यहाँ पर आपको rhizobium का example देती हूँ. Rhizobium. Do you know about leguminous plants? दाल के पौधों का नाम सुने हैं आप लोगों ने? Yes, ma'am. सुना है। तो उनकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी। ठीक, लेग्यूमिनेसी प्लांट्स यानी मटर, चना, दाल, जितनी भी दालें हैं, आपका राजमा या तुअर दाल, जितनी भी दालें हैं, उनकी जब आप रूट देखोगे तो उस रूट में आपको इस तरह से गांठें दिखाई देंगी। अच्छा, दाल के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन हमारे को ज्यादा मिलता है? कौन सा न्यूट्रिएंट? दाल क्यों खाना चाहिए? दाल क्या देता है आपको? मैम प्रोटीन। Protein, yes, only you are giving the answer. What about others? So pulses provide us proteins. तो pulses ऐसा क्या है स्पेशल कि उनके अंदर इतनी ज्यादा प्रोटीन होती है? ऐसा इसलिए होता है because pulses means the plants of leguminaceae family. बार बार बता रहे हैं, leguminaceae इनकी फैमिली का नाम है। लेग्यूमिनेसी फैमिली के रूट में यहाँ पर जब देखेंगे तो इसके अंदर रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एयर से नाइट्रोजन को लेता है और इसको लेकर के इसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट में और प्लांट को दे देता है। इसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट में। प्लांट देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं प्लांट्स, ओके, लेकिन जब वो नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और वो नाइट्रेट या अमोनियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया NH4, तो ये वाटर में सॉल्युबल है, तब प्लांट इसको ले सकते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या किया? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट में या अमोनियम आयन में और दे दिया प्लांट्स को। तो वाह, प्लांट्स को तो नाइट्रोजन मिल गया, प्लांट्स उससे अपना प्रोटीन्स बनाए, अपना प्रोटीन्स अपनी फ्रूट्स में रखे, अपनी जो उनकी फली है उसमें रखे, एंड दैट्स व्हाई वी गेट अ लॉट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम दीस पल्सेस। तो ये तो हुआ राइजोबियम ने उसको हेल्प किया प्लांट को। प्लांट ने क्या हेल्प किया इसको? प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, ये जो रूट्स हैं वाटर एब्जॉर्ब करती हैं तो खुद भी लेंगी और इसको भी वाटर देंगी ये, एंड दे गिव प्लेस टू लिव। इसके रूट के अंदर में ये रह रहा है तो इसको जगह मिल रही है, सेफ्टी मिल रही है। तो राइजोबियम को क्या फायदा हुआ? एब्जॉर्ब्ड वाटर मिल गया और रहने की जगह मिल गई। प्लांट्स को क्या फायदा हुआ? नाइट्रेट या अमोनियम आयन मिल गया। So both are living in a close association. This kind of association is known as symbiotic bacteria. Okay, the term is symbiosis, and here is the example of symbiotic bacteria. So these are all other examples are also given here, like Bacillus radicicola, Bacillus azotobacter, Clostridium, Rhizobium species. Again, I have written Rhizobium, Azotobacter, the same thing. So this is all about bacterial nutrition.
तो अब बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन समझ में आ गया। ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं और कीमोसिंथेसिस हो सिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं एंड सिम्बियोटिक भी हो सकते हैं। So children, this is all we discuss about the nutrition of bacteria. Now let's study the next part, that is respiration. Respiration here I have explained just in one line. They may be aerobic or anaerobic. हर तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ होते हैं जो ऑक्सीजन में ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन लेकर के रेस्पिरेशन करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एरोबिक बैक्टीरिया। और कुछ होते हैं जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रीदिंग करते हैं, उन्हें कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। सो दोनों तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। So that's it about respiration. Let's discuss about reproduction in bacteria. ये डायग्राम कुछ देखा हुआ लग रहा है आप लोगों को? कुछ पहचान में आ रहा है डायग्राम? Yes, ma'am. Yes. What is the term for this diagram? Ma'am, binary fission. Binary fission. Yes. And this is the most common type of reproduction in bacteria. Okay. सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इसी तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय बाइनरी फिशन। यानी कि एक बैक्टीरिया है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, फिर इसके बाद सेल वॉल 2 पार्ट में, और ये 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे। सो बैक्टीरिया में मेजर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल जो होगा वो भी बताएंगे थोड़ा सा, हालांकि वो प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, मेल फीमेल बने और स्पर्म और एग बने, वैसा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ उससे सिमिलर होता है। बट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल मींस, एंड एसेक्सुअल मींस में ये होता है बाय बाइनरी फिशन। ओके, दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई, मान लो कि कहीं पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वहां पर ड्राई सिचुएशन होने लग गई, तो उस समय में ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा। उस समय क्या करेगा, ये अपने सरफेस पे बहुत ज्यादा हार्ड कवरिंग बना लेता है। ओके, तो वो बना लेगा स्पोर, बैक्टीरिया वो बना लेगा स्पोर। तो वो स्पोर एक्चुअली रिप्रोडक्शन नहीं है। स्पोर क्या है, वो एक तरह से अपने आप को बचाने का तरीका है टू अनफेवरेबल सिचुएशन। कैसे अपने आप को अनफेवरेबल सिचुएशन से बचाएं। ओके, लेकिन एटलीस्ट उसमें वो सरवाइव कर पाते हैं, और जब वापस से फेवरेबल सिचुएशन आ गई, नॉर्मल सिचुएशन आ गई, तो ये क्या करते हैं कि ये अंदर ही अंदर जो इनका न्यूक्लियस है वो बहुत पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद में वो अलग अलग वो पूरा जो कवरिंग बनी थी एंडोस्पोर की वो ब्रेक हो जाएगी और ये स्पोर बाहर स्प्रेड कर जाते हैं। ओके, सो दैट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, they reproduce sexually by transfer of DNA from one bacteria to other, the process called as conjugation. So kindly remember, जब हम लोगों ने पढ़ा था about plasmid पढ़ा था, small extra nuclear DNA, extra chromosomal DNA. So sometimes, suppose there is 2 bacteria, one is having plasmid, another is not having plasmid. Okay, so they both come to each other, closer to each other, and the first bacteria which has plasmid, it divides its plasmid into 2 and transfers one plasmid to the second one. Now both of them have plasmid now. So this kind of transfer of DNA from one bacteria to another bacteria is known as conjugation. That is also very rarely found method of reproduction, but it is there. Okay, तो कभी कभी उस तरह भी रिप्रोडक्शन ये करते हैं बैक्टीरिया, बट मेजर वन इज बाइनरी फिजन। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, कितने तरह की बैक्टीरिया है, कितने टाइप से डिवाइड करते हैं। सो द फर्स्ट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, दे आर आल्सो नोन एज प्रिमिटिव बैक्टीरिया। प्रिमिटिव बिकॉज जब इवोल्यूशन हुआ था तो सबसे पहले जो अर्थ पर आए थे वो बैक्टीरिया थे, लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं थे जो हम आज देखते हैं।
ये वो बैक्टीरिया थे जिनको हम कहते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया, वो उस समय से बने और आज भी बने, आज भी होते हैं, ये आज भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग एक और टर्म देते हैं, लिविंग फॉसिल्स। फॉसिल्स के फॉर्म में भी है एंड लिविंग भी है। तो आर्की बैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज living fossil. They are also known as most primitive organisms, primitive bacteria. Okay, so these archaebacteria, they have a difference from the eubacteria in having their cell wall structure. इनका जो सेल वॉल है वो जो बाकी बैक्टीरिया यूबैक्टीरिया है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और इसी वजह से ये सारे हार्श कंडीशंस में होते हैं, जहां पर लाइफ हम सोचते नहीं है वहां पर ये पाए जाते हैं। और ये भी एक रीजन है क्योंकि जब अर्थ बनी होगी तो उस समय एक सिचुएशन बड़ी हार्श सिचुएशन रही होगी, तो उस समय ये उस तरह से अडेप्ट हुए कि वो उस हार्श सिचुएशन में सरवाइव कर सके, और वो आज तक सरवाइव कर रहे हैं उन ऐसे सिचुएशंस में। ठीक है, अब क्योंकि वैसी सिचुएशंस बहुत कम जगह है इसलिए ये बहुत कम जगह पर पाए जाते हैं। अब कौन कौन सी वो हार्श सिचुएशंस हैं? 3 कंडीशंस में ये पाए जाते हैं। नंबर 1, the first type of archaebacteria are halophiles. Halo means salt, philes means loving. Salt loving, जहां बहुत ज्यादा salty situation है, जैसे कि जहां पर ओशन का पानी बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है, वहां पर यूशरीज में वहां पर ये पाए जाती हैं। एग्जाम्पल इज Halobacterium and Halococcus. Second type of bacteria, archaebacteria, is thermoacidophiles. Thermo means high temperature, acido means high acid. High acid का मतलब pH क्या होगा, 7 के प्लस या माइनस? एसिडिक pH कौन सा होता है? मैम माइनस में। माइनस में। जितना आप 7 से नीचे जाएंगे उतना एसिडिक होगा। 6 कम एसिडिक है, 5 उससे ज्यादा एसिडिक है, 4 is more acidic, 1 is the highest acidic condition. Okay, so thermoacidophiles are those archaebacteria which loves to survive in high acidic area and high temperature. हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक एरिया होता है हॉट स्प्रिंग्स, जैसे कहते हैं सल्फर हॉट स्प्रिंग्स, वहां पर ये पाए जाते हैं। सल्फोबोलस एंड थर्मोप्लाज्मा, 2 एग्जांपल्स आई हैव रिटन हियर. एंड थर्ड वन आर मीथानोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, सो दे आर फाउंड इन मार्शी एरियाज। और ये मेथेनोजेंस और भी पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन द गट ऑफ कैटल्स। रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब होता है वो एनिमल्स जिनके स्टमक में एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है र्यूमेन, उस र्यूमेन में ये मिथानोजन बैक्टीरिया रहते हैं और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और इसीलिए आप देखोगे जब आप बुफेलोज वगैरह के, काउज वगैरह के पास में जाओगे तो आपको वहां पे एक गंदी सी स्मेल आती है, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस ओवर देयर। एंड दैट इज ऑल्सो द रीजन कि क्यों हम इनके काउ डंग को, कैटल डंग को यूज करते हैं फॉर एज अ फॉसिल फ्यूल। ऐसे जो बायोगैस प्रोडक्शन होता है उसमें हम इनके काउ डंग को यूज करते हैं ना फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। तो बायोगैस में कौन सी गैस बन रही है? मीथेन। क्यों? क्योंकि जो काउ का डंग निकला उस डंग में मिथानोजन बैक्टीरिया था, जब उसको हमने एनारोबिक सिचुएशन में रख दिया तो वो मीथेन प्रोड्यूस करेगा, और वही मीथेन हम अपने घरों में एज अ फ्यूल, एज अ गैस जलाने के काम में लाते हैं। सो मिथानोजन बैक्टीरिया 2 जगह मैंने बताया, दे आर फाउंड इन मार्शी लैंड्स एंड दे आर आल्सो फाउंड इन marshlands, and they are found in the ruminant gut of the ruminant animals. See here I have written methanogens are also found in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane, that is biogas. Okay, so this is the classification of archaebacteria. Now the second one is eubacteria. Eubacteria are the true bacteria, and eubacteria जो हमने अभी बैक्टीरिया का सारा स्ट्रक्चर पढ़ा था, शेप पढ़ा था, that was for the eubacteria. तो सारा हम इसका डिटेलिंग पढ़ चुके हैं. Okay, so if they are motile, they possess flagellum, they have a rigid cell wall. Yes, one thing is left which I'm going to explain in the next class, that is gram positive and gram negative bacteria. Okay, that we will discuss in a separate class.
थर्ड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इज साइनोबैक्टीरिया. अभी हमने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया, कहाँ पढ़ा था? Just now I had explained cyanobacteria. Yes, ma'am. They are dark blue in color. They are blue colored bacteria and they are photosynthetic. Here is a diagram of one cyanobacteria nostoc. Okay. अब ये क्या है? इसमें बहुत सारी सेल्स हैं. हम लोगों ने तो पढ़ा कि बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, लेकिन बहुत सारी सेल एक साथ भी रह सकती है. सो दे मे बी यूनिसेलुलर, दे मे बी कॉलोनियल और दे मे बी फिलामेंटस. एंड व्हेन दे आर लिविंग एज अ कॉलोनी, जब बहुत सारी एक साथ रह रही ग्रुप में कॉलोनी बना करके, तो उनके ऊपर में एक जिलेटिन का शीट बन जाता है पूरा, सो दैट कि वो एक क्लस्टर के फॉर्म में दिखाई देते हैं. ओके. सम ऑफ द यूबैक्टीरिया दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन. ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं. सो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए दे हैव अ स्पेशल सेल नोन एज हेटेरोसिस्ट. ये जो अलग से स्ट्रक्चर है, हेटेरोसिस्ट. एक बड़ा यूनिक फीचर है, यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जैसा अभी मैंने राइजोबियम में बताया था, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं. उसके लिए इनको कंप्लीट एनारोबिक सिचुएशन चाहिए, यानी इनको अगर ऑक्सीजन मिल गया तो ये मर जाएंगे. तो इनको क्या करना है? एनारोबिक सिचुएशन चाहिए. तो इनमें दे कन्वर्ट फ्यू ऑफ द सेल्स एज अ हेटेरोसिस्ट, और इस हेटेरोसिस्ट को ये इंश्योर करते हैं कि इसके में ऑक्सीजन ना जाए. इसलिए क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ में हार्ड वॉल बना देते हैं, और जो इसके बगल की जो सेल्स होती है, इनका काम होता है, दे वर्क एज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर. यानी कि अगर कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके अंदर जा रहा है तो उसको वो बाहर निकाल करके फेंकने का काम करती है. तो दे इंश्योर कंप्लीट एनारोबिक सिचुएशन हियर इनसाइड द हेटेरोसिस्ट, और तब उसके अंदर में होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. So this is about the cyanobacteria. And the last class of bacteria is mycoplasma. Mycoplasma are the smallest known bacteria. अगर आपको याद हो तो अगर आपको याद है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम. तब हमने पढ़ा था अबाउट mycoplasma. Mycoplasma is the smallest known living organism, smallest bacteria, and there is one another name of this mycoplasma is PPLO. Have you heard this term, anyone? PPLO word सुना है आप लोगों ने कहीं? No, ma'am. नहीं सुना है. PPLO is actually P for pleuro, again P for pneumonia, L for like, and O for organism. Okay. PPLO means pleuropneumonia like organisms, and mycoplasma are also known as PPLO. Mycoplasma का ही दूसरा नाम है PPLO. And the special feature about them is that these type of bacteria, mycoplasmas, do not have cell wall. तो कभी भी आपसे पूछता है एक बैक्टीरिया बताओ जिसमें सेल वॉल नहीं है, एग्जाम्पल हो जाएगा mycoplasma. And they are the smallest living cells known. तभी मैंने बताया ना, they are the smallest bacteria. And they are anaerobic. They can survive without oxygen. And they are pathogenic. They cause diseases to the other organisms. Here is the structure. Okay. So smallest known bacteria है ये mycoplasma. It is also known as PPLO. कभी आपको अगर पूछा आपसे MCQs में कि out of 4 बताओ कौन सा, which one is the smallest known living organism, और mycoplasma न लिख के लिख दिया वहां पे PPLO. So you have to tick on PPLO. Pleuropneumonia like organisms. Okay, so with this, let's end the class for today. We discussed about the nutrition of bacteria. We discussed about respiration of bacteria, reproduction of bacteria, and also the classification, means categories of bacteria. Categories of bacteria, we discussed about archaebacteria, eubacteria, cyanobacteria, and mycoplasma.
plasma. So children, that's all about the kingdom Monera. In the next class, we'll discuss about gram positive and gram negative bacteria.